Now you allowed. Thank you so much, sir. Thank you so much. No, no Sorry, sir. problem, no Sorry problem. for delay. Okay. No. Okay, thank you very much. Thank you. Dean Faculty of Arts, Professor Komal, Director of Sports, Dr. Reena Punia, Director Dr. Dev Prasad Sharma ji, Dr. Vidya, Dr. Deepak, Shri Sharma, and dear participants. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to each and every unit associated with this organization. Since I am directed to speak on the title, on the theme of this faculty development program of 5 days, on the theme stress management through yoga and meditation, I will be with you for 1.5 hours. I will discuss in detail about the stress management through yoga and meditation. Dear friends, if we see today's society, the daily routine, food habits, and the lifestyle of the individuals have been changed, or due to the change in daily routine, food habits, and lifestyle, people are drawing their health status, fitness level, as well as spiritual development to the brink of precipice. So, instead of giving stress on nauseous talks, we should give stress on the talks which are helpful to retrench our weaknesses. So, I congratulate the organizers to organize these types of faculty development programs which are helpful to retrench our weaknesses, as well as these are helpful to retrench stress. So without wasting time, I am going to present my presentation. Vidya, is it visible on the full screen? So is it visible but not on full screen? I shared on the full screen. Okay. It is visible, sir. Okay, sir. it is. As I have said earlier that I will speak on the title Stress Management Through Yoga and Meditation. Madam Punia directed me to speak in both the languages, English as well as Hindi. दोनों भाषाओं में मैं आप सबके साथ बात करूंगा. I divided my presentation कि मैं अपनी बात आप तक ठीक प्रकार से पहुंचा पाऊं. I divided my presentation into 12 different parts. We know that a close or significant relationship of our health or mental health with stress. So first I will discuss about health and the mental health, or we can say that about the concept of health and mental health. In the second part, we will discuss in detail about the stress. In the third part, we will discuss about the thought process, health and stress. What is the association between these three terminologies? In the fourth part, we will discuss about the association of yoga with the thought process, since everything depends on our thought process. In the fifth part of the presentation, I will discuss about the link between physical and mental health. We will discuss about spiritual perspectives also, social perspectives also, and we will discuss in detail about the warning signals, symptoms, and the effect of stress, both types of effects, positive as well as negative. Then in the ninth part of my presentation, we will discuss about the physiology of stress. Since we all are from academic pursuits, हम सब शैक्षिक पेशे से जुड़े हैं, and we are very curious, हम सब जिज्ञासु भी हैं. Several types of questions may arise in our mind. So we will discuss about the common questions which may arise in our mind. And in the 11th part, I will discuss about stress and meditation. How meditation plays a significant role in controlling stress. And in the last part of my presentation, I will show you some suggested practices. बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान, प्रगाढ़ विदुषियां योग के क्षेत्र से हैं, उन्होंने कुछ सुझाए हैं, वो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा. तो शुरू करते हैं पहले भाग से, हेल्थ से. कोई नई बात नहीं है. वी ऑल आर फैमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी. हम सब इस शब्द को सुनते आए हैं, इसके बारे में सब जानते हैं. दो परिभाषाओं की बात करूंगा. आई विल डिस्कस अबाउट ओनली 2 डेफिनेशंस. एक परिभाषा के बारे में हम सब जानते हैं, द डेफिनेशन गिवन बाय WHO इन द ईयर 1948, 1948 में WHO ने परिभाषित किया हेल्थ को. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग.
not merely an absence of disease or infirmity, कि बीमारियों की अनुपस्थिति ही केवल अच्छे स्वास्थ्य का निर्धारण नहीं करती है, that is beyond that. लेकिन 1948 में ये परिभाषा दी गई WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, but later WHO realized कि something is missing, कि कुछ ना कुछ इसमें छूटा हुआ है. तो in this definition that is given by WHO in the year 1948, only there are 3 dimensions: physical, mental, social. But later 2 more dimensions were also added: spiritual development, आध्यात्मिक विकास, emotional development, संवेगात्मक विकास. इन 5 आयामों की पूर्ति के बिना कोई भी व्यक्ति विशेष अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता. फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक विकास. और योग तो एक ऐसा क्षेत्र है, योग तो एक ऐसा अभ्यास है जिसका क्लोज एसोसिएशन है विद स्पिरिचुअलिटी. इट्स इजीएस्ट वे टू अटेन द स्पिरिचुअलिटी. एक परिभाषा और मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहूंगा. द डेफिनेशन गिवन बाय सुश्रुत संहिता. आयुर्वेद के क्षेत्र ने भी हमें एक परिभाषा दी है इस श्लोक के माध्यम से. द श्लोक इज इन फ्रंट ऑफ यू. सम दोषय, समाग्निश्च, सम धातु, मल क्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय, मन स्वस्थ इत्यभिधीयते. This definition is completely based on different types of balances. Some dosha, some means a balanced state. Some dosha, we have 3 types of defects in our body: Vata, Pitta, Kapha. There should be balance between these 3. Samagnisha, we know that the body temperature is regulated by our largest gland, that is liver. और हम योग में कहते हैं नाभि में अग्नि प्रज्वलित होती है. अति हुई तो भी खतरनाक है, मंद हुई तो स्लगिश डाइजेशन होगा. सम दोष है समाग्निश्य की, प्रोडक्शन ऑफ हीट शुड बी ऑप्टिमल. सम धातु, एज पर योग, एज पर आयुर्वेद, और बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 7 डिफरेंट एलिमेंट्स: रस, रक्त, मांस, मज्जा वगैरह वगैरह. उनके बीच में भी संतुलन स्थापित हो. मल क्रिया और एक्सक्रेटरी सिस्टम, हमारा उत्सर्जन तंत्र भी उच्चतम शिखर तक कार्य करे. और अगला भाग है इस परिभाषा, द नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी. प्रसन्न आत्मेंद्रिय, मन, तीनों ही प्रसन्न रहे. ऑल 3 शुड बी हैप्पी. मन, इंद्रिया और हमारी आत्मा. आत्मा इज दैट ड्रॉप ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस दैट एंटर्स इन आवर बॉडी एंड वी आर अलाइव. तो तीनों ही, और यही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है. वी ऑल आर मैच्योर एनफ, वी कैन कंपेयर both the definitions. हम दोनों परिभाषाओं की तुलना कर सकते हैं. The definition given by WHO और सुश्रुत संहिता. तो हम कुछ ऐसा करें जिससे तनाव मुक्त भी हो और इन दोनों परिभाषाओं के अनुरूप एक स्वास्थ्य को अर्जित करें. तो कुल मिलाकर हमने केवल स्वास्थ्य को समझा. We tried to understand the concept of health as per WHO, as per सुश्रुत संहिता. तो अब आगे दूसरे भाग की बात करते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस अबाउट ऑल डायमेंशंस इन द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सीमित समय में सभी आयामों का, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सभी आयामों की चर्चा करना संभव नहीं है. सिंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग एंड मेडिटेशन. तो इन 5 आयामों में से सबसे अधिक भूमिका तो मेंटल हेल्थ की है. स्ट्रेस संबंधित है, एसोसिएटेड है मेंटल हेल्थ से. So we will discuss in detail about only one dimension, that is mental health. It's more than the absence of mental disorder. जैसे कि स्वास्थ्य की परिभाषा में हमने बात की थी, केवल बीमारियों की अनुपस्थिति ही अच्छे स्वास्थ्य का निर्धारण नहीं करती है. We can say that absence of any mental disorder cannot be considered as a good mental health or a symptom of a good mental health. Same is applicable here also. So what do you mean by mental health? It is the ability. What type of ability? Ability to think, ability to learn, ability to understand. Then the question arises, what we have to think, what we have to learn, we have to understand. We have to think, learn and understand one's emotions and reactions of others. So mental health is also a balanced state. जो एक मानसिक स्वास्थ्य है, ये भी एक संतुलन की अवस्था है. कि what type of balance? Balance between self and environment. कोई व्यक्ति विशेष अपना स्वयं का अनुकूलन वातावरण से कर लेता है तो उसके मेंटल हेल्थ, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, होने की संभावना है. अन्यथा कोई भी व्यक्ति विशेष अच्छा मानसिक स्वास्थ्य अर्जित कर ही नहीं सकता. तो इट इज अ बैलेंस स्टेट.
There are several factors that plays a vital role in producing this balance. इस संतुलन को बनाने में दुनिया भर के कारक अपनी भूमिका निभाते हैं. Physical, psychological, social, cultural also, spiritual also. So there are some symptoms of improper mental health. तो क्योंकि improper mental health होगी तो तनाव उत्पन्न होगा. तो I will discuss in very brief. I am going to list these. Eating too much. यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक खाता है, one of the symptom, उसका एक कारण, one of the cause may be ill mental health और improper mental health. Sleeping too much अच्छी बात है, नींद बहुत आए, लेकिन अति की नींद आना भी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की निशानी नहीं है. दोनों का ही अपोजिट, ईटिंग टू मच, स्लीपिंग टू मच, दोनों का ही अपोजिट, ईटिंग टू लिटिल और स्लीपिंग टू लिटिल. These are also the symptoms of improper mental health. Having low or no energy, अपने आप को ऊर्जा विहीन यदि हमें महसूस होता है. Suffering from unexplained pain, यदि हमें unexplained pain कोई ऐसा हो कि रूट कॉज इज अनआइडेंटिफाइड, रूट कॉज का हमें पता नहीं चलता है, उस दशा में भी. एंड फीलिंग हेल्पलेस, हम आपको हम असहाय महसूस करते हैं. फीलिंग होपलेस, आशा विहीन महसूस करते हैं. कंफ्यूज्ड, हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं. भूलने की बीमारी है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है. वी बिकम एंग्री, वी बिकम अपसेट, वरीड, चिंतित रहते हैं हमेशा. स्केयर्ड, एयर जर्नी से भी डर लगता है, ट्रेन जर्नी से भी डर लगता है. And if we have unhealthy relations with the family member and friends, अपने फैमिली मेंबर्स के या दोस्तों के साथ हमारे बहुत अच्छे एक संबंध नहीं है, स्थापित नहीं कर पाते हैं. मूड स्विंग, कभी लगेगा कि हम दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति या कभी लगेगा इस दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं. मूड स्विंग यानी स्टेबल नहीं रहता मूड. Unable to stop the wandering mind. This is the most important factor that has a significant association with the stress. It is very essential to stop the wandering mind. यदि कोई अपने आप को तनाव मुक्त करना चाहता है तो अपना जो मन इधर उधर भटकता है उसको एकाग्र करने की क्षमता विकसित करनी होगी. If we are unable to stop the wandering mind, that is one of the cause, one of the symptom of improper mental health. Thinking of harming yourself and others. कुछ व्यक्ति विशेष की एक प्रवृत्ति होती है, वो कोशिश करते हैं दूसरे को हार्म पहुंचाना किसी न किसी रूप में, और दूसरों को नहीं, स्वयं को भी हार्म करने का प्रयास करते हैं. Since we all are from academic pursuits and we have responsibilities towards academic pursuits, शैक्षिक पेशे से जुड़े हैं, कर्तव्य है, डेली टास्क है, कुछ ना कुछ हमें काम करना है, कार्य करना है. If we are unable to perform our daily task, one of the symptom may be improper mental health. अब बात करते हैं स्ट्रेस की, क्योंकि मैडम रीना पूनिया ने मुझे जो आदेशित किया था कि सर यू हैव टू स्पीक इन डिटेल अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग एंड मेडिटेशन. योग और ध्यान से तनाव का निवारण कैसे करें उसकी बात करते हैं. तो स्ट्रेस को एक सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस. एक सबसे एक सरल सी परिभाषा है. इट्स अ सिंपलेस्ट एंड कॉन्साइज डेफिनेशन, नॉन एडजस्टमेंट विद द चेंजिंग सिचुएशन. यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी, यह समाज हमेशा एक जैसा नहीं है, परिवर्तन होते रहते हैं. इफ वी आर अनेबल टू एडजस्ट ourselves with the changing situation, that situation is known as stress. Non-adjustment with the changing situation is known as stress, as per the eminent personalities from the field of stress. And we can say that it is an imbalance in dimensions of health. Dimensions कितने थे? WHO के अनुसार हमने बात की थी, अभी हमने 5 dimensions की बात की, 5 आयामों की बात की, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल. यदि इन आयामों के बीच में भी संतुलन स्थापित करने में यदि हम असमर्थ रहते हैं, वो भी एक सिचुएशन है स्ट्रेस की. अब प्रश्न उठता है कि एक थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लें कि डॉक्टर हैंस सीएलए पहले थे, एक एंडोक्राइन एक्सपर्ट थे कनाडा के, जिन्होंने पहली बार एक स्ट्रेस को परिभाषित किया, डिफाइन किया, इस टर्मिनोलॉजी को, स्ट्रेस को. उनकी भाषा में बात करते हैं. Improper response of the body to any demand made upon it.
as per the words of Dr. Hen. This is characterized by the reactions, various types of reactions lead to muscle tension, lead to acute anxiety, also lead to increased heart rate or hypertension also. So, and our breathing becomes shallow and leads to giddiness also. Ladies and gentlemen, there is a close association between our thought process, health, and stress. And what is the association between these three, among these three? For that, I would like to share a small part of a paper that was published by Phyllis E. Miller, that was published in the year 2001 in a journal, and the journal was indexed in PubMed and PubMed Central, and we know that this PubMed is a reputed name in the field of biomedical researches. And the title of the article was Challenging and Changing Stress Producing Thinking. I am going to present two hypothetical examples. दो काल्पनिक परिकल्पनापूर्ण उदाहरण इस आर्टिकल में दिए गए हैं by the authors के द्वारा, लेखक के द्वारा. And the hypothetical condition is, एक परिकल्पनापूर्ण परिस्थिति क्या है? The patient had a severe adverse reaction to the medication prescribed by a doctor. व्यक्ति बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी, and the patient has a severe adverse reaction to the medication prescribed by the doctor. डॉक्टर ने ठीक करने के लिए दिया था, लेकिन उसकी तो हालत और बिगड़ गई, मरीज की हालत और बिगड़ गई. The doctor was flooded with thoughts. डॉक्टर घबराया, डॉक्टर के दिमाग में, मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे. First I will discuss about the situation one of this hypothetical example. इस परिकल्पनापूर्ण एग्जाम्पल में, उदाहरण में पहली सिचुएशन की बात करते हैं. द सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थॉट प्रोसेस, कि ऐसा थॉट प्रोसेस जो स्ट्रेस, तनाव उत्पन्न करता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस. इस पे टॉपिक डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक इसकी चर्चा करते हैं. There was an assumption of the doctor. डॉक्टर की मान्यता थी, सोच था, किस प्रकार का सोच था, किस प्रकार की मान्यता थी, किस प्रकार के विचार थे. I must be perfect all the times, I am ultimate, I never do mistakes. यह सोच था डॉक्टर का कि मैं कभी गलती करता ही नहीं, मैं अल्टीमेट हूं. डॉक्टर कमिटेड एरर, डॉक्टर से गलती हुई, गलत दवाई दे दी. उसके बाद Escalation takes place. I should have known, मुझे पता होना चाहिए था. I will be sued, I am incompetent, मैं असक्षम हूँ. इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे, क्योंकि उसकी मान्यता थी कि I must be perfect all the times, मैं गलती कर ही नहीं सकता, और गलती हो गई थी. उसका परिणाम क्या हुआ? The feeling started, the doctor was full of shame, अब शर्म से भर गया. Physical symptoms appear हुए, headache शुरू हुआ, और बिहेवियर चेंज हुआ. डॉक्टर्स ने अल्कोहल लेनी शुरू की, एंड द डॉक्टर ब्लेम्ड अवॉइडेंस. इसी एग्जाम्पल की, इसी उदाहरण की दूसरा एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, और उस एग्जाम्पल को ऑथर्स ने नाम दिया है प्रोसेस ऑफ रियलिस्टिकली इवैल्यूएटिंग थॉट. प्लीज सी दिस पिक्चर फ्रॉम बॉटम टू टॉप. उस पिक्चर को हमने देखा था टॉप टू बॉटम, इसको देखने का प्रयास करेंगे बॉटम टू टॉप. हेल्दी एजम्पशन है यहाँ पर, वहां पर एजम्पशन था आई मस्ट बी परफेक्ट ऑल द टाइम्स, आई एम अल्टीमेट, आई नेवर डू मिस्टेक्स. इस प्रकार की मान्यता थी डॉक्टर की. यहाँ डॉक्टर की मान्यता है आई एम नॉट परफेक्ट, आई विल समटाइम्स मेक एरर्स. मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कभी कभी मुझसे गलतियां हो सकती है. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी नो दैट एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू हैव सम एरर. प्रत्येक व्यक्ति की बाध्यता है कि उसमें त्रुटियां होंगी ही होंगी. उसकी मान्यता थी, परफेक्ट कोई भी नहीं है संसार में. तो डॉक्टर कमिटेड एन एरर, डॉक्टर से गलती हुई. फीलिंग स्टार्टेड कि आई एम अनकंफर्टेबल, दैट डजंट मीन दैट आई एम इनकम्पिटेंट. मुझसे गलती हुई है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं असक्षम हूँ. गलतियां सबसे होती हैं. इस प्रकार की सोच थी डॉक्टर की. फिजिकल सिम्टम्स अपीयर हुए,
डॉक्टर फोकस्ड, डॉक्टर ने अपने मन को एकाग्र करके एक जगह लगाया, बिहेवियर जरूर बदला, उसकी द सेंसेस हाइटन्ड, लेकिन डॉक्टर ने उस अपने आप को उस स्थिति से उबार लिया। तो उन्होंने डॉक्टर लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, डॉक्टर ने इस गलती से सीखा, काफी कुछ इस अनुभव से सीखा कि भविष्य में इस तरह की कोई गलतियां ना हो, और सबसे अच्छा काम किया कि he took urgent attention to the crisis। तो इन दोनों सिचुएशंस में पहली सिचुएशन थी द स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थॉट प्रोसेस, जिसको नाम दिया ऑथर्स ने, और दूसरी जो सिचुएशन है, सिचुएशन इज सेम, जो दूसरा प्रोसेस था विचारों की प्रक्रियाएं जो घटित हुई, प्रोसेस ऑफ रियलिस्टिकली इवैल्यूएटिंग थॉट प्रोसेस। इन दोनों सिचुएशंस के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष, नेगेटिव थॉट्स कैन डिटोरेट, नकारात्मक विचार क्षीण करते हैं किसको, पर्सन्स मेंटल हेल्थ को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, एंड क्यूमुलेटिवली डैमेजिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप, हमारे व्यावसायिक संबंध एक दूसरे के खराब करते हैं। केवल व्यावसायिक संबंध ही नहीं, हमारे व्यक्तिगत संबंध को भी डिटोरेट करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, मे बी फ्रॉम life partners etc, that also affect our decision taking ability, हमारे निर्णय लेने की शक्ति को भी प्रभावित करते हैं। We will not be able to distinguish between right and wrong, and the main effect is on our behavior, हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमें अभी तक की चर्चा में से निष्कर्ष निकाला, we concluded from our discussion that we should have positive thought process। तो हम अपने thought process को एक सकारात्मक बनाएं। Now I will proceed to the fourth part of my presentation, that is association of yoga with our thought process। कि what is the association of yoga with the thought process, हमारे विचारों की प्रक्रिया और योग के बीच में क्या संबंध है, इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। योग को जाने का प्रयास करते हैं। मेरी एक बात से आप सहमत होंगे, यू विल बी एग्री विद माय स्टेटमेंट, देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन इन द फील्ड ऑफ योग के क्षेत्र में बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान विदुषियां पैदा हुई, समय समय पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार योग के क्षेत्र में उड़ेल दिए, लेकिन आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर। मैं आप सबके समक्ष बात कर रहा हूँ एक स्तरीय साहित्य पर आधारित, और उस स्तरीय साहित्य में से एक है महर्षि पतंजलि का दिया हुआ योग सूत्र। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग को परिभाषित किया, योग इज ए सेसेशन। योग इज सेसेशन मींस टू स्टॉप। योग इज ए सेसेशन ऑफ द थॉट वेव्स। व्हाट डू यू मीन बाय थॉट वेव्स? योग की भाषा में थॉट वेव्स को हमने कहा वृत्ति। इट मींस द सेसेशन ऑफ द वृत्तिज इज नोन एज योग, एंड सेसेशन ऑफ द थॉट वेव्स इज नोन एज योग। कि फ्रॉम वेयर दिस थॉट वेव्स ओरिजिनेट्स, वे थॉट वेव्स या वृत्तियां उठती कहां से? फ्रॉम माइंड स्टफ। जैसे एक योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, एक श्लोक के माध्यम से दिया गया है कि सेसेशन ऑफ द थॉट वेव्स ऑफ आवर माइंड स्टफ। व्हाट डू यू मीन बाय माइंड स्टफ? माइंड स्टफ मींस आवर चित्त, द एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। वी may compare with the hard disk of a computer. Everything is stored in the depth of unconscious mind. That is our mind stuff. That is a cosmic mind as per yoga, all pervading, that is noticeable everywhere. So we can say that the cessation of the thought waves of mind stuff is known as yoga. As per Maharshi Patanjali, the concept is given in the form of a shlok, Yogasya Chitta Vritti Nirodha in Yoga Sutra. We have also discussed that there is a close association of our thought process with the stress, and I have said earlier also, if we are unable to stop the wandering mind, that will lead to stress. यदि हम अपने मन को एकाग्र करने की क्षमता विकसित नहीं करते हैं, वो हमें तनाव की तरफ लेकर जाएगा। So it's clear from the definition, since the yoga is the cessation of the thought waves of mind stuff, that will lead to reduction in the stress. आगे थोड़ा चलते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है मेरे प्रस्तुतिकरण का, the link between physical and mental health. What is the link between physical and mental health? Ladies and gentlemen, there is a close association between physical and mental health.
Body and mind cannot be separated. If anything that takes place in our mind, essentially that will affect our body. If anything happens in our body, that will essentially affect our mind. Ladies and gentlemen, we should keep in the entirety of our mind, and we will discuss in detail about this process. What type of? There are inseparable links between mental and physical health, I have said earlier. As one more information I would like to share with you, एक सूचना, एक सामग्री जो WHO की रिपोर्ट में, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में से आप सबके समक्ष साझा करना चाहूंगा. I would like to share with you all कि more than 100 million people suffer from mental health disorders in the Western Pacific region. And और उसका कि depressive disorders alone are responsible for the 5.73% of the total diseases. That is a significant. We are discussing about the body-mind connections, and I have said body and mind cannot be separated. There are two different types of connections between body and mind. One is automatic, स्वचालित. हम वो घटित होगा ही होगा, हम कितना भी नियंत्रित करने का प्रयास करें, हम नियंत्रित नहीं कर सकते. We cannot control the automatic link between body and mind. Another link, and this automatic link may take in two different directions. दो विभिन्न दिशाओं में घटित हो सकता. Automatic mind body phenomena की initiation takes place from mind that affect the body, और उसका ठीक रिवर्स automatic body mind phenomena. Another type of connection is deliberate, स्वेच्छा से, कि deliberately we try to connect our body to mind or mind to body. Deliberately, there are several practices in the field of योग. योग के क्षेत्र में दुनिया भर के अभ्यास इस प्रकार के, I will discuss in detail. उसकी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा. कि first one is deliberated mind body expression, कि deliberately we establish the connection between mind and body. Next one is deliberated body mind expression, कि body to mind or mind to body. So there are four different types of connections, and we will discuss in detail about these four different types of connections. इन चारों ही connections के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. Again I repeat, दोबारा दोहराता हूँ. First we will discuss about automatic mind body phenomena, starts from mind, affect the body. In the second part we will discuss about the automatic body mind. In the third part we will discuss about the deliberated mind body, and the fourth type of connection is deliberated body mind expression. We will discuss one by one. Let's start with the first, that is automatic mind body phenomena. I will list few examples of these. Initiation takes place from mind, takes place in mind that affect the body. Crying का, रोने का initiation mind से शुरू होता है, but that affect our body, that has a delayed effect on our body. Laughing की बात करें, facial expression की बात करें, body languages की बात करें, emotions की बात करें, cognitive ability की बात करें, hypochondria, हिंदी में हम कहते हैं रोग भ्रम. It is revealed by the research studies. यदि कोई हमें भ्रम है, रोग भ्रम की, I am suffering from this disease, I am suffering from this disease, initiation takes place from mind, और actual में उस बीमारी से व्यक्ति पीड़ित होता है. That is known as hypochondria. That shows a close association between, a close link between, significant link between body and mind. And जितने भी psychosomatic diseases हैं, these are examples of mind body connections. And since we all are associated with the research में जो placebo effect है, that is an example of mind body phenomena. दूसरे की बात करते हैं. Let's discuss about second connection, second automatic connection, that is automatic body mind phenomena, कि बॉडी से कुछ घटित, बॉडी में, शरीर में कुछ घटित हुआ और उसने हमारे माइंड को प्रभावित किया, माइंड पर प्रभाव डाला. एग्जाम्पल इज फिजिकल पेन, कैसा भी पेन हो सकता है, एंड फिजिकल प्लेजर, कोई भी एक प्लेजर हो, वो भी बॉडी से शुरू होकर माइंड पर को प्रभावित करता है. हीट है, फिजिकल पेन में पेन ड्यू टू हीट, पेन ड्यू टू कोल्ड, इंटरनल ऑर्गन का पेन हो सकता है, मे बी ज्वाइंट पेन ऑल्सो. और फिजिकल प्लेजर में we may give three different types of examples. One is food. Physically we take food, अच्छा खाना खाया और mind refreshes,
खाना ठीक नहीं है तो माइंड पर को प्रभावित करेगा, सामान्य सी बात है। बाथ, we take bath, our body take bath, but that refreshes our mind, and sex is also an example of that automatic body mind phenomena. अब बात करते हैं तीसरे की, लेट्स डिस्कस अबाउट थर्ड, डेलिब्रेटेड माइंड बॉडी एक्सप्रेशन, कि डेलिब्रेटली वी परफॉर्म समथिंग फ्रॉम माइंड दैट इफेक्ट द बॉडी, एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ योग, कि डेलिब्रेटेड वी डू एक्टिविटीज फ्रॉम माइंड that affect our mind as well as that affect our body. Examples are body mind practices and acting also. और body mind practices में maybe imagery practices, maybe autogenic practices, meditation. Meditation is one limb among all 8 limbs of yoga. अष्टांग योग का एक भाग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। So out of all limbs, one is meditation, and that comes under the practice of deliberated mind-body expression. The initiation takes place from mind that affect our body also. तो ये हम ध्यान से दिमाग से निकाल दें कि मेडिटेशन का केवल हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है। If we talk about delayed effect, यदि उसके दीर्घकालिक प्रभावों की बात करें तो मेडिटेशन के प्रभाव शरीर पर भी पड़ते हैं, माइंड पर तो पड़ते ही हैं। और बायोफीडबैक एक एग्जांपल है। अब बात करते हैं अंतिम कनेक्शन की, डेलिब्रेटेड बॉडी माइंड फिनोमेना, कि शरीर से कुछ हम अभ्यास करें, वो शरीर को तो प्रभावित करेंगे ही, साथ साथ हमारे माइंड को भी प्रभावित करें। रेस्पिरेटरी प्रैक्टिस, दैट इज नोन प्राणायाम। प्राणायाम फिजिकली वी इनहेल, वी रिटेन द ब्रेथ, वी एक्सहेल, हम श्वास लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, पूरा घटित करते हैं, कुंभक लगाते हैं, रेचक करते हैं। तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेलिब्रेटेड बॉडी माइंड फिनोमेना। तो प्राणायाम की बात करें, यह भी एक 8 लिम्स में से एक लिम्ब है योग का, जो कि शरीर को तो प्रभावित करता ही करता है, लेकिन साथ साथ माइंड को। और प्राणायाम के क्षेत्र में तो यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस, different types of pranayama. There is a long list of pranayama practice. अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, मूर्छा, भ्रामरी, दुनिया भर के प्राणायाम है। लेकिन प्राणायाम has 2 different types of effect. Spontaneous effect also. तत्काल प्रभाव। अभी प्राणायाम अनुलोम विलोम के भी 5 रिपीटेशन कीजिए, हमारी मेंटल स्टेट बदलती है, and that has also delayed effect that may appear after 2 days, 3 days, after a week, or after a month also, may appear after months also. Next practice is physical exercises, that is known as yogasana. We perform in standing position, we perform in prone lying position, we perform in supine lying position, we perform in sitting position. That has effect on both body and mind, since body and mind cannot be separated. And then another example is progressive relaxation technique. Nowadays there is a trend to practice progressive relaxation techniques. First we contract the muscles and we concentrate on that, then we relax the muscles, we concentrate on that. In the third part we try to differentiate between contraction and relaxation. That is a methodology to practice progressive relaxation techniques, and it is advised by the eminent practitioners that we should follow a sequence. Either we can start from toe to head or head to toe. So these are the examples. So my purpose was to establish the relationship between body and mind, and to prove that body and mind cannot be separated. और योग के क्षेत्र में तो in the field of yoga we have both the types of practices. That is mental practices. Example is meditation. Bodily practices. शारीरिक अभ्यास. 2 examples are in front of you from the field of yoga, pranayama and yogasana. So ladies and gentlemen, body and mind, we should keep in our entirety of our mind. Body and mind cannot be separated. देखिए, स्ट्रेस के तनाव की परिभाषा में एक परिभाषा हमने पढ़ी थी कि 5 आयामों के बीच में यदि असंतुलन की स्थिति पैदा होती है तो वो हमें तनाव की तरफ धकेलती है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल। तो एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, तो स्पिरिचुअल एक आध्यात्मिक एक दृष्टिकोण से यदि हम सोचें तो भी हम कहेंगे कि यदि आध्यात्मिक इफ वी आर लैकिंग इन स्पिरिचुअलिटी, यदि हम एक इस क्षेत्र में लैक करते हैं, दैट मे लीड टू प्रोडक्शन ऑफ
स्ट्रेस। तो इस कंसेप्ट को व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी, इस कंसेप्ट को भी समझने का प्रयास करते हैं। एज पर योगिक कंसेप्ट देयर आर 72,000 नाड़ीज इन आवर बॉडी। योगिक मान्यताओं के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय नाड़ीज? हम सब सर्कुलेटरी सिस्टम को जानते हैं। वी हैव एन आइडिया अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त संचार तंत्र के बारे में हम सब ने सुना है। वेयर द ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज, थ्रू वेन्स, थ्रू आर्ट्रियोल्स, थ्रू वेन्यूल्स, और थिनेस्ट क्या है? कैपिलरीज। उसके ठीक पैरेलल एक और सिस्टम ऑफ चैनल काम करता है नाड़ीज का। These nadis are micro vessels where the prana flows, and the prana is that vital force जो हमें जीवित रखती है. Due to that we are alive, and these prana flows through nadis. You may search from various search engines, Yahoo search, Google search, दुनिया भर के researches on nadis. You will find several researches on these nadis also. So again I repeat, nadis are micro vessels through which प्राण फ्लोज. नाड़ियां वो एक सूक्ष्म नालिकाएं हैं जहां से हमारे प्राण प्रवाह करते हैं. आउट ऑफ ऑल नाड़ीज 3 आर मेन. वन इज ईडा नाड़ी, अनदर इज पिंगला नाड़ी, थर्ड वन इज सुषुम्ना नाड़ी. ध्यान दीजिए. अभी लेट्स डिस्कस ऑन बाय ईडा नाड़ी. ईडा नाड़ी एक इन लेमैन्स लैंग्वेज वी कैन से दैट ईडा नाड़ी इज आवर लेफ्ट नॉस्ट्रिल. दिस नाड़ी हैज कोल्ड इफेक्ट. और चंद्रमा को हम प्रदर्शित हमेशा करते हैं शीतलता के लिए. ड्यू टू इट्स कोल्ड इफेक्ट दिस नाड़ी इज नोन एज चंद्र नाड़ी. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस नाड़ी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. यह नाड़ी हमारे उत्सर्जन तंत्र को नियंत्रित करती है. पासिंग ऑफ स्टूल, पासिंग ऑफ यूरिन, पासिंग ऑफ स्वेट. यदि हमारी ईडा नाड़ी में कोई भी एक व्याधि उत्पन्न होती है तो हमारा उत्सर्जन तंत्र, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक से कार्य नहीं करेगा. वी टेक एंटीबायोटिक्स, रूट कॉज को ठीक नहीं करते. द डिजीज विल अपीयर अगेन. वो व्याधि दोबारा से उत्पन्न होगी. ईडा नाड़ी के बाद दूसरी है पिंगला नाड़ी. पिंगला नाड़ी इन लेमैन्स लैंग्वेज, पिंगला नाड़ी मीन्स आवर राइट नॉस्ट्रल, एंड दिस हैज वार्म इफेक्ट. And warmness is denoted by Surya. Due to its warm effect, this nadi is known as Surya nadi, sun nadi. ईडा नाड़ी किसको नियंत्रित करती थी? चर्चा कर चुके हैं. उत्सर्जन तंत्र को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को. On the other hand, पिंगला नाड़ी is responsible for the functioning of our 2 major systems. हमारे 2 मुख्य तंत्रों को नियंत्रित करती है. सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचार तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र. और ये तीनों सिस्टम, ऑल दीज 3 सिस्टम्स, वन इज कंट्रोल्ड बाय ईडा एक्सक्रीटरी, 2 आर कंट्रोल्ड बाय पिंगला सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी. दीज आर द मेजर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. तो ये तीनों सिस्टम उच्चतम शिखर तक कार्य करें. इफ यू वांट टू रिजुविनेट आवरसेल्व्स, द बैलेंस बिटवीन दिस ईडा एंड पिंगला नाड़ी इज रिक्वायर्ड. बैलेंस चाहिए ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच में. And that is performed by the third nadi, Sushumna nadi. That is a junction between these two that crosses our spinal cord and that crosses our chakras. The chakras means our energy centers. Different types of energies are produced in our body by the chakras. एक example लेते हैं. Let's take an example. Go to your past. आप अपने भूतकाल में जाइए. When you became ill, आप जब बीमार पड़े, हर व्यक्ति बीमार पड़ा होगा जीवन में. एक example फीवर का ले लेते हैं. आप याद कीजिए कभी फीवर हुआ था, फीवर रहा होगा किसी को भी XYZ को, तो आवर वन नॉस्ट्रल ब्लॉक्स, हमारी ईडा और पिंगला में संतुलन की स्थिति पैदा होती है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द इम्बैलेंस बिटवीन ईडा एंड पिंगला नाड़ी. सो फॉर रिजुविनेशन, टू अवॉइड स्ट्रेस, वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ईडा एंड पिंगला नाड़ी. दैट इज मेंटेन्ड बाय Sushumna nadi. That is the junction between these two, and that takes place by the help of chakras, body chakras. I have said earlier that these body chakras are our energy centers. As per yoga, there are 7 energy centers in our body, from bottom to top: Muladhar, Swadhisthana, Manipur, Anahat, Vishuddhi, Agya, Sahasrara. There are 7 energy centers. We will discuss one by one. Muladhar, Swadhisthana, Manipur, Anahat, Vishuddhi, Agya, Sahasrara. थोड़ा लोकेशन के बारे में जान लेते हैं. लेट्स
know about the location of these 7 energy centers. Let's discuss one by one. Muladhara chakra is situated at our opening of anus, or we can say that our supraanal gland. Second chakra, Swadhisthana chakra, is situated at our sexual organs, or we can say that our gonads. Third chakra is situated at Manipur, or we can say that situated at our Nadhi in the stomach, or near to pancreas or adrenal glands. Anhat chakra is situated at our chest region, or we can say that at our heart. And Vishuddhi chakra is situated at our neck region, or we can say that that is situated at our thyroid gland. Neck chakra, Agya chakra, is situated in between our eyebrows, or we can say that that is situated at our master gland, and we know that pituitary gland is our master gland. Next one is the Sahasrara chakra. Sahasrara chakra is situated at the top of head, or we can say that situated at our smallest gland of the body, that is known as pineal gland. हम बात कर रहे थे, we are talking how to maintain the balance between Ida and Pingala Nadi. That is maintained by Sushmana Nadi. Sushmana Nadi is the junction between Ida and Pingala Nadi, and that crosses all these chakras. See in picture. And that takes place by the help of the activation of Kundalini. नाड़ियों के बाद, चक्र के बाद तीसरा शब्द, नाड़ियां क्या थी? माइक्रोवेसल थी. चक्र क्या थे? एनर्जी सेंटर्स थे. कुंडलनी एक तीसरा शब्द हमसे, the third word is in front of us, that is Kundalini. Ladies and gentlemen, we all are born with spiritual energy. हम सब आध्यात्मिक शक्ति के साथ पैदा हुए हैं. In inactivated state, this Kundalini resides at Mooladhara chakra on sacral bone, sacrum. That is the last part of spinal cord, triangular in shape. That is known as holy bone, जिसको पवित्र अस्थि, पवित्र हड्डी कहा गया है. वो एक धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप यदि देखें तो यदि इस कुंडलनी को, स्पिरिचुअल एनर्जी को, यदि हम किसी भौतिक पदार्थ से तुलना करना चाहिए, want to compare this Kundalini with any physical shape. This is like a rope having 3.5 rounds. Every round has a specification. First round is responsible for Sattva, जिसमें ये dominate करेगा. The individual will be full of purity and enlightenment. दूसरा round denote करता है रजस को, जिसमें यह इसकी अधिकता होगी, dominate करेगा. The individual will be full of vasanas and kriyas. And third round is responsible for tamas, जिसमें इसकी अधिकता होगी. The individual will be full of Jadta and Andhakar. The individual will be dull-minded. We all have these 3 universal modes, Sattva, Rajas and Tamas. After activation, through regular meditation, through your practices, we can activate this spiritual power, spiritual energy, or Kundalini from Mooladhara that reaches Sahasrara via crossing all chakras, Mooladhara, Swadhisthana, Manipur, Anahata, Vishuddhi and Sahasrara. And individual leads to self-realization, or the expansion of consciousness takes place. As per psychology, there are 3 states of mind: conscious mind, subconscious mind, unconscious mind. But as per yoga, there are 4th state of mind also, superconscious mind, परम चेतन मन. परम चेतन मन की अवस्था को भी अर्जित कर सकते हैं योग के अभ्यास से, as per yoga literature. तो what do you mean by expansion of consciousness? Expansion of consciousness का अर्थ क्या हुआ? एक सामान्य भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं. As per psychology, there are 3 states of mind: conscious mind, subconscious mind, unconscious mind. Conscious mind means chetan man. We all, you and me, you all and me, all are in conscious mind. We are familiar about surroundings. मेरे सामने लैपटॉप है, आपके सामने मोबाइल या लैपटॉप है, मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे मेरी स्लाइड दिख रही है. It means we all are in conscious mind. हम सब चेतन मन में हैं. Unconscious mind, when we become unconscious, semi-unconsciousness कहाँ होती है? निद्रा में, during sleep also. What do you mean by subconscious mind? अवचेतन मन. As per literature, something takes place in our mind and we are not familiar about that working. That is known as the functioning of our subconscious mind. What do you mean by this? मान लीजिए दीपक है, इस FDB के एक यूनिट है, पार्ट है, वो भी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है. और दीपक उम्र में मुझसे छोटे हैं, काफी छोटे हैं. आज मेरा लेक्चर, मान लीजिए इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में, काल्पनिक उदाहरण में, कि उन्होंने पहली बार मेरा लेक्चर ये सुना है.
मैं अपना लेक्चर देने के बाद अपने काम में विश्वविद्यालय के में लीन हो जाऊंगा, वो भी अपने मणिपाल विश्वविद्यालय के काम में लीन हो जाएंगे। और आफ्टर लॉन्ग, बहुत समय बाद, मान लीजिए 10-15 साल बाद हम मिलते, मैं रिटायर हो चुका हूंगा और वो मेरी अवस्था में आ चुके होंगे। उनको मैं रेलवे स्टेशन पर मिला और घूर के देख रहे हैं कि ये तो चेहरा कहीं देखा हुआ है, चेहरा बदल चुका होगा 20 साल बाद। And he recalled, Deepak recalled, yes sir, you delivered a lecture on online mode in Manipal University on stress management through yoga and meditation. He came to me. I tried to recall, बुढ़ा हो चुका होगा, मस्तिष्क भी बुढ़ा हो चुका होगा, unable to recall. तो दीपक मुझसे कहते हैं, सर आप बुढ़े हो गए हैं, लेकिन I know very well, I remember, मुझे पूरी तरह याद है कि आपने लेक्चर दिया था on the topic stress management through yoga and meditation. छोड़िया, उन्होंने मुझे कहा। तो और हम दोनों रेलवे प्लेटफॉर्म पर दूसरी बातों में लीन हो गए थे। हम दोनों के मन ने, हम दोनों के माइंड ने उस क्षेत्र में सोचना बंद कर दिया था कि कहाँ लेक्चर था। हम दूसरी बातों में लीन थे। थोड़ी देर बाद आई रिकॉर्ड, मुझे याद आया, यस आई डिलीवर्ड ए लेक्चर ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेरे कॉन्शियस माइंड ने उस क्षेत्र में सोचना बंद कर दिया था, फिर भी कॉन्शियस माइंड को सम पोर्शन ऑफ माइंड वाज असिस्टिंग, एक माइंड का कोई पोर्शन असिस्ट कर रहा था। दैट टाइप ऑफ असिस्टेंस इज नोन एज द फंक्शनिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस, वी मे इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड आल्सो। दैट इज नोन एज द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अब थोड़ी और बात करते हैं आगे। और ये जो हमने बात की, अभी चर्चा की कि कुंडलिनी स्पिरिचुअल पावर रिजाइड्स ऑन द सैक्रल बोन, यू आर सीइंग इन द रेड कलर, दैट इज नोन एज होली बोन। इसको आफ्टर हियरिंग दिस वर्ड वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। दिस इज नोन एज होली बोन, पवित्र अस्थि के नाम से जाना जाता है। केवल हम किसी भी रिलीजन की बात करें, वी कैन नॉट लिंक योग विद एनी रिलीजन। हिंदुओं में बात करें, मुस्लिम्स में बात करें, ईसाइयों में बात करें, किसी भी धर्म में किसी ना किसी रूप में है। और दिस कंसेप्ट वाज आल्सो प्रेजेंट इन हिपोक्रेट्स 400 BC में भी, जिस इसको हेर्नस्टाउन के नाम से जाना जाता था। रोम में भी इसकी मान्यता थी, दैट दिस वाज नोन बाय सेक्रेड बोन। और व्हाई दिस बोन इज नोन एज ए होली बोन, इसको पवित्र अस्थि होली बोन क्यों कहा जाता है, एक डिस्कशन का पार्ट रहा। किसी ने कहा दिस प्रोटेक्ट आवर जेनिटल ऑर्गन्स, इसलिए रहा होगा। किसी ने कहा दिस इज यूज्ड इन आवर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, हमारे धर्म कर्म कांडों में इसका उपयोग करते हैं। किसी ने कहा दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर रीबर्थ। तो एक आश्चर्य था उस समय बना रहा। और एक एग्जाम्पल है, आई एम कोटिंग वन एग्जाम्पल फ्रॉम हदीथ मुस्लिम्स में, उसमें कहा है कि यह हड्डी कभी नष्ट नहीं होगी, दिस बोन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अल्लाह इससे नए शरीर का निर्माण करेंगे। तो वी शुड नॉट लिंक योग विद एनी रिलीजन। किसी ना किसी रूप में यह मान्यता हर धर्म विशेष में किसी ना किसी रूप में है। इंडियन आइकोनोग्राफी की बात करें, भारतीय प्रतिमा विज्ञान की बात करें, वहां भी ये मान्यता है। और ये जो ऐसा नहीं है, आई हैव टेकन दिस पार्ट, दिस पोर्शन, दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन आर्टिकल पब्लिश इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन बिना साक्ष्यों के बिना एक निम्न स्तर के शोध पत्र को प्रकाशित नहीं करता। द आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1982, रिटन बाय ऑस्कर शुगर। और I have given an example of hadith also, written by Sahih al-Bukhari in the year 1991. So we should not be surprised after hearing this word sacred bone, sacral bone, that is known as a holy bone, and our kundalini, our spiritual power in an activated state resides on this. And there are various means and methods by using that by practicing that we can activate this spiritual power. राजयोगी मेडिटेशन से करते, तंत्र योगी तंत्र विद्याओं से करते, मंत्र योगी बाय रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास, हठ योगी बाय हठ प्रैक्टिसेस। So there are various means and methods by using that we can activate this spiritual energy, and meditation is the simplest way, easiest way to activate this, and we may lead to rejuvenation. We may rectify or eliminate stress. तो कंसेप्ट ऑफ बॉडी लेयर्स के बारे में भी थोड़ा जान लें, क्योंकि स्ट्रेस से बॉडी लेयर्स का क्या संबंध है, इसको जानना भी जरूरी है। यू विल बी एग्री विद माय वन मोर स्टेटमेंट दैट वी स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ आवर लाइफ टू ग्लोरीफाई आवर फिजिकल बॉडी। जो हमारा शरीर, भौतिक शरीर जो दिखाई दे रहा है, इसको ग्लोरीफाई करने में हम अपने जीवन का अधिकतम समय नष्ट कर देते हैं। अब अधिकतम समय उसी को देते हैं। बट
एज पर योग देयर आर 3 बॉडी लेयर्स। हमने एक लेयर को तो बात कर ली, रिमेनिंग 2 लेयर्स की हम बात भूल जाते हैं। फर्स्ट लेयर इज अ फिजिकल बॉडी, जिसको कि योग की भाषा में कहा अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। बर्थ टेक्स प्लेस, जन्म हुआ। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, विकास हुआ, वृद्धि हुई, बड़ा शरीर। स्टैग्नेशन टेक्स प्लेस, स्थिरता ही, मेरी उम्र अब स्थिरता की, अब इंप्रूवमेंट तो होना नहीं। कुछ दिन बाद डिटोरेशन टेक्स प्लेस, शरीर क्षीण होना शुरू होगा, और अंत में डेथ टेक्स प्लेस, मृत्यु हुई। इसका ये एग्जाम्पल है फिजिकल बॉडी का, अन्नमय कोश का। और इसी को ग्लोरीफाई करने में हम अपने जीवन का अधिकतम समय व्यतीत कर देते हैं, बिता देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटी सी स्टोरी है, बड़ी प्रभावशाली है, उसको मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू शेयर दैट स्टोरी। देयर वाज अ चाइल्ड ऑफ 4-5 years, 5-6 साल का 4-5-6 साल का बच्चा था। गोवा बीच पर घूम रहा था अपने पिता के साथ विद हिज फादर, एंड द चाइल्ड वाज वेरी क्यूरियस बाय नेचर। बड़ा जिज्ञासु था प्रकृति का, बहुत ही चतुर और इंटेलिजेंट बच्चा था। और वहां गुब्बारे बेचने वाला एक गुब्बारे बेच रहा था, हरे, नीला, काला, पीला, दुनिया भर के गुब्बारे थे। बच्चा देख रहा था गुब्बारों को, पिता की उंगली पकड़े था। दूसरे बच्चों ने जो कि गोवा बीच पर घूम रहे थे, उन्होंने सभी गुब्बारे खरीद लिए। काले रंग का गुब्बारा किसी ने खरीदा? द चाइल्ड वाज वेरी क्यूरियस। पिता से क्वेश्चन पूछा, पिताजी यह गुब्बारा इसलिए सभी ने नहीं खरीदा है काले रंग का कि उड़ता नहीं होगा? पिता ने बच्चे को गुब्बारे के पास ले गए, गुब्बारा खरीदा, बच्चे के हाथ में दिया, कहा छोड़िए, उड़ गया। द चाइल्ड लर्नड ए न्यू लेसन। बच्चे को एक नई सीख मिली कि इसके उड़ने में इसकी बाहरी परत का कोई योगदान नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन इंटरनल पार्ट, जो इसके अंदर है उस पर निर्भर करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी भी व्यक्ति विशेष की प्रगति और विकास में बाहरी लेयर का ना के बराबर योगदान है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंटरनल लेयर्स? इंटरनल लेयर्स का क्या स्टेटस है? दैट डिपेंड्स ऑन दैट। So the remaining layers are, the second layer is known as astral body, सूक्ष्म शरीर, that is connected to the physical body with the subtle thread, जिस दिन कटा that departs within गया। And this astral body, that middle part, is subdivided into 3 parts: प्राणिक क्षत, प्राणमय कोश, mental क्षत, मनोमय कोश, and intellectual क्षत, विज्ञानमय कोश। प्राणिक क्षत, this controls our sensory organs, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी की अनुभूति हमें प्राणिक क्षत करवाती है। मेंटल क्षत हैज ए क्लोज एसोसिएशन विद स्ट्रेस। तनाव से मेंटल क्षत का गहरा संबंध है। द मेंटल, बाय द हेल्प ऑफ मेंटल क्षत वी एक्सपीरियंस थॉट, किस प्रकार के विचार उत्पन्न होने, डाउट, शंकित हमें यही करती है, एक्सलेशन, हर्षोल्लास से पहुंचाने वाली यही है, डिप्रेशन, अवसाद में डालने वाली भी यही है, और डिल्यूजन, भ्रम में डालने वाली भी यही है। सो वी शुड perform such type of practice from the field of yoga that strengthen our mental health. योग के क्षेत्र में हमें अपने अभ्यास सत्रों में उन अभ्यासों को सम्मिलित करना चाहिए जो हमारे मनोमय कोश को मजबूत बनाएं, हमारे मेंटल क्षत को स्ट्रेंथन करें। इंटेलेक्चुअल क्षत, विज्ञानमय कोश, that control and guide the mind, हमारा माइंड इसी के दिशा निर्देश में कार्य करता है। डिस्क्रिमिनेशन, decision making, what is right, what is wrong, it is decided by intellectual Kshat. We take decisions as per the directions of intellectual Kshat, but our ego resides in this. So we have discussed about 2 layers. The third layer is causal body, कारणमय शरीर, that is a seed body. हम कहते हैं जैसा बीज बोया वैसा पौधा निकलना है, that is a seed body. Everything is of a causal body, that is a blueprint of a plant. It will produce the stores, जैसा store है वैसा produce करेगा. The subtle impressions in the form of our karmas, we do our karmas, and the karmas are stored in the depth of our unconscious mind in the form of a seed. उससे fruit तो वही निकलना है जो बोया है हमने. These control the, ladies and gentlemen, this is the important sentence, these control the formation and growth of other 2 bodies. Our 2 bodies, I mean physical body, annamaya kosh, and astral body. The development of remaining 2 bodies depends on our causal body. It means, as per yoga, everything, or to a great extent, that depends on our karmas, our seed body, our causal body. So, अब social perspectives की बात करते हैं, थोड़ा social perspectives. आज के दिन समाज में
यदि किसी व्यक्ति विशेष का अगर सामाजिक विकास ठीक नहीं है तो संभावना रहती है कि तनाव को फेस करेगा, वो व्यक्ति विशेष तनाव का सामना करेगा। तो सोशल पर्सपेक्टिव्स को भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल प्रैक्टिस, कि सोशल पर्सपेक्टिव्स। तो इस सोशल पर्सपेक्टिव्स को समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, और हम कैसे इसका विकास करें उसकी बात भी करेंगे, क्योंकि तनाव मुक्त करने के लिए यह बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही जरूरी है कि एक तनाव मुक्त अपने आप को करने के लिए। तो हाउ टू डेवलप रिलेशंस, अगर हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे होंगे तो तनाव एक कम होने की संभावना रहेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो हाउ टू डेवलप रिलेशंस, दैट डिपेंड्स ऑन आवर। मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि इज फ्रेंडशिप पॉसिबल बिटवीन द 2 पर्सन्स हु स्पीक मोर, क्या उन 2 व्यक्तियों के बीच में दोस्ती हो सकती है जो बहुत अधिक बोलते हैं, बहुत अधिक बातूनी है? ना के बराबर है। इज फ्रेंडशिप पॉसिबल बिटवीन 2 पर्सन्स हु स्पीक लेस, जो व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं, क्या उनके बीच में दोस्ती हो सकती है? ना के बराबर है। इज फ्रेंडशिप पॉसिबल बिटवीन 2 पर्सन्स वेयर वन स्पीक लेस एंड वन स्पीक मोर, एक बहुत अधिक बातूनी है, एक बहुत कम बोलता है, दोनों के बीच में दोस्ती होने की संभावना है? यस, प्रगाढ़ दोस्ती होने की संभावना है। इट मीन्स दैट डिपेंड्स ऑन आवर नेचर। हम कहते हैं इस व्यक्ति की नेचर बड़ी अच्छी है, इस व्यक्ति की नेचर अच्छी नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन आवर नेचर, दैट डिपेंड्स ऑन आवर फंडामेंटल बिहेवियर, दैट डिपेंड्स ऑन आवर फंडामेंटल बिहेवियर, मूलभूत व्यवहार। इस मूलभूत व्यवहार को हम जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल बिहेवियर, कि ये हमारा मूलभूत व्यवहार है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय दिस फंडामेंटल बिहेवियर? Ladies and gentlemen, this fundamental behavior consists of 3 traits. 3 ट्रेट से मिलकर बना है। इंक्लूजन, हिंदी में कहेंगे समावेश, दूसरा है कंट्रोल, हम कहेंगे नियंत्रण, और तीसरा अफेक्शन, हम कहेंगे स्नेह। All these three traits, inclusion, control, affection of our fundamental behavior, these are present in 2 different forms. One is expressed and wanted. It means we have 6 different traits. Expressed inclusion, अभिव्यक्त किया गया समावेश, wanted inclusion, दूसरे से अपेक्षित समावेश, expressed control, अभिव्यक्त किया गया नियंत्रण, wanted control, दूसरे से अपेक्षित का नियंत्रण, and expressed affection, अभिव्यक्त किया गया स्नेह, और wanted affection, दूसरे से अपेक्षित स्नेह। इनको समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दीपक, डॉक्टर दीपक इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। स्टाफ रूम में बैठे हैं, ही इज सिटिंग इन द स्टाफ रूम। उनको चाय पीने, ही वांट टू टेक टी, चाय पीने जाना है। साथियों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, चुपचाप गए, किसी को नहीं बताया, चाय पीने चले गए, किसी को पता नहीं चला, चाय पीकर आकर बैठ गए, सबने पूछा था नहीं बताया। इट मींस इन दिस हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इस कल्पना में उनका एक्सप्रेस इंक्लूजन इज 0। दूसरा एग्जांपल, अजीत उनको चाय पीने जाना है, सबको कह रहे हैं आई विल पे फॉर दैट, प्लीज अकम्पनी मी, आई विल अरेंज फॉर योर टी, और सब पूरा स्टाफ रूम जान गया है कि दीपक चाय पीने जा रहे हैं। इट मींस इन दिस हाइपोथेटिकल एग्जांपल हिज एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन इज 100%। यदि इनका कोई साथी बैठा है बगल में और उसका वांटेड इंक्लूजन 0% है, ये नहीं बताकर गए थे, झूठ बोलकर भी गए थे, तो भी उनका व्यवहार अच्छा लगेगा कि काम से काम रखते हैं। और यदि उनका वांटेड इंक्लूजन 0% है और ये उनको इनवाइट करें, तो विचार उत्पन्न होंगे दिमाग में, बिना कोई काम होगा, बिना काम के चाय थोड़ी पिला सकते हैं, जहर तो नहीं पिला देंगे। These types of thoughts may arise in the mind. तो सेम एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन, वही अभिव्यक्त किया गया समावेश may be acceptable for someone, may not be acceptable for someone. So ladies and gentlemen, तनाव मुक्त तभी हो पाएंगे आफ्टर एडजस्टमेंट, कि we have to adjust our wanted inclusion as per the expressed inclusion of another individual. जो अनुकूलन कर पाता है कम तनाव में रहेगा। कंट्रोल की बात भी वही है। कंट्रोल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, नियंत्रण। स्कूल में हम पढ़ते थे, कुछ टीचर्स ऐसे थे, हम हल्का सा हिलते थे डांट देते, क्यों हिल रहे हो, सीधा बैठ।
और कुछ टीचर्स हमारे जीवन में ऐसे भी रहे होंगे कि हम कैसा भी मूवमेंट करें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनको पढ़ाने से मतलब था। तो पहले एग्जाम्पल में एक टीचर के इस काल्पनिक उदाहरण में जो जिनको कि हिलने से भी प्रॉब्लम होती है, उनका वांटेड कंट्रोल 100% है, सॉरी एक्सप्रेस्ड कंट्रोल 100% है, और जो केवल पढ़ाते थे और बच्चों से कुछ नहीं कहते थे, उनका एक्सप्रेस्ड कंट्रोल 0% है। जिस बच्चे का वांटेड कंट्रोल 100% हो, टीचर की डांट भी उसको अच्छी लगेगी, वो उस टीचर को पसंद करेगा मेरे भले के लिए। और जिसका वांटेड कंट्रोल 0% हो, टीचर की डांट पर बड़ा गुस्सा आएगा, तनाव में आ जाएगा, क्यों मेरी बेइज्जती कर देते हैं कहीं भी। तो वी हैव टू, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव टू एडजस्ट, we have to accommodate our wanted control also as per the expressed control of another individual. नहीं तो हमें तनाव उत्पन्न करेगा ही एज पर द साइकोलॉजिकल थ्योरी, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुरूप। तीसरे की बात करते हैं, अफेक्शन की बात करते हैं, स्नेह की बात करते हैं। स्नेह हर व्यक्ति लेना देना जानता है। दीपक की शादी तय हुई तो मेरे पास इनविटेशन देने आया, सर मेरी शादी तय हो गई है, my marriage has been fixed and you are respectable for me, you have to come। इस वे में इनवाइट किया, इसका अर्थ नहीं है कि मेरा आदर नहीं करता, he respect me, लेकिन क्योंकि उसका इस दशा में उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि उनका एक्सप्रेस्ड अफेक्शन 0% है। और सेकंड वे हो सकती है, सर my marriage has been fixed since you are respectable for me, you are respected to me, sir please come to bless me in my marriage। इस दशा में, इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में एक्सप्रेस्ड अफेक्शन 100% है। यदि मेरा वांटेड अफेक्शन 0% होगा तो पहला जो तरीका था वो अच्छा लगेगा, कितने हक से मुझे कह रहा है, और 0% हुआ तो लगेगा ये डांट रहा है मुझे या not। तो सेम बिहेवियर में बी एक्सेप्टेबल फॉर समवन, सम मे नॉट बी एक्सेप्टेबल। इन कंक्लूजन, एज पर द साइकोलॉजिकल थ्योरी, टू अवॉइड स्ट्रेस वी कैन से दैट वी हैव टू एडजस्ट our wanted inclusion, wanted control, wanted affection as per the expressed control, expressed inclusion, expressed affection of another individual। वही तनाव मुक्त रहेगा। And we develop by yogic practices, by meditative practices, we automatically adopt this। यह अनुकूलन स्वतः ही हम सब में विकसित होता है। वार्निंग सिग्नल्स ऑफ सिम्टम्स एंड द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल्स की, सिम्टम्स की और तनाव के प्रभावों की बात कर लेते हैं। वार्निंग सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं। तनाव आएगा तो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, आपको वार्न करेगा, यस आई एम कमिंग, बी रेडी फॉर दैट, तैयार हो जाओ, तैयार रहो। इंक्रीज शुगर, सब जानते हैं आजकल तो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डिस्टर्ब स्लीप है, एक पैनिक अटैक भी हो सकता है सीवियर केस में, क्रॉनिक फटीग हो सकती है, थकान दूरी नहीं हो रही आपकी, हेडेक है, सर दर्द है, स्वेटिंग है, पसीना आता है, वीकनेस है शरीर में, हरीड इन टॉकिंग, बड़े जल्दबाजी करते हैं बात करने में, एंजाइटी बढ़ती है, आशा विहीन महसूस करते हैं, होपलेसनेस, रेस्टलेसनेस, बेचैन रहते हैं हमेशा, इरिटेबिलिटी, हमेशा इरिटेट रहते हैं, डायरिया भी है, और डायरिया का ठीक अपोजिट कॉन्स्टिपेशन है। दोनों ही एक वार्निंग सिग्नल है स्ट्रेस के। अल्कोहलिक और एक्सीडेंट प्रोननेस है, कहीं टकरा गए, कहीं कुछ हो गए, एक फिजिकल सिम्टम्स हैं कुछ स्ट्रेस के, एक शारीरिक लक्षण है, भौतिक लक्षण, एलर्जीज, मे बी स्किन एलर्जी ऑल्सो, चेंज इन एपेटाइट, बैक पेन हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, क्लैमी हैंड्स हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, फटीग हो सकती है, रेसिंग हार्ट बीट एक नॉर्मल से बहुत अधिक बढ़ जाए, मसल टेंशन हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, शरीर में स्किन में रैशेस हो सकते हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया से पीड़ित आप हो सकते हैं, स्टमक पेन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, नाइटमेयर्स हो सकते हैं। केवल शारीरिक लक्षण नहीं, एक व्यवहार संबंधी लक्षण भी एक है कुछ। आई एम गोइंग टू लिस्ट दीज। नेग्लेक्टिंग अपीयरेंस, अकेलापन भाता है कि नहीं, लोगों के सामने जाने में थोड़ा सा फियर रहता, छोटी छोटी बात पर आर्ग्यू करते हैं। अवॉइडिंग टॉक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, वी आर अनेबल टू स्टॉप द वॉन्डरिंग माइंड, जो मन इधर उधर भटक रहा है उसको एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं।
बीइंग लेट टू वर्क, हमेशा लेट पहुंचते अपने एक कार्यस्थल पर, ओवर ईटिंग, अनकंट्रोल्ड एंगर, गुस्से पर काबू ही नहीं है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ अल्कोहल और अदर ड्रग्स, क्राइंग इजीली, छोटी छोटी बात पर रोने लगते हैं, वॉचिंग टीवी more than the normal, withdrawing from family and friends. That is related to the first symptom, that is neglecting appearance. Both are correlated with each other. इमोशनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, संवेगात्मक लक्षण भी हो सकते हैं, गुस्सा है, एंग्जाइटी है, एस्केपिज्म है, डिप्रेशन है, डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस है, लॉनलीनेस है, नर्वसनेस है, फीलिंग पावरलेस है, शक्तिहीन समझते हैं, फीलिंग अनहैप्पी और नो विदाउट रीजन, रूट कॉज इज नॉट आइडेंटिफाइड, बीइंग इजीली अपसेट, छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो रहे हैं, वरिंग फ्रीक्वेंटली, फीलिंग ट्रैप्ड, ऐसा लगता है कि मुझे ट्रैप तो नहीं किया जा रहा है। अब बात करते हैं मेन मुख्य इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। मैं पहले बता चुका हूं, द इफेक्ट में भी पॉजिटिव, इफेक्ट में भी नेगेटिव। स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल एंड स्ट्रेस कैन बी हार्मफुल ऑल्सो, दोनों ही है। ऐसा नहीं है हम कहें कि पूरी तरह से स्ट्रेस मुक्त हो जाए, तो हो सकता है कि हम बहुत अधिक प्रगति जीवन में न कर पाए। द हेल्पफुल पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेस इज नोन एज यूस्ट्रेस, एक्स्ट्रा एनर्जी टू मीट फिजिकल चैलेंजेस, सोल्व प्रॉब्लम्स एंड टू रीच गोल्स। हर व्यक्ति विशेष के जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है, यूस्ट्रेस होगा। ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज यूस्ट्रेस। ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में उत्पन्न होती है और हम अपने निर्धारित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हार्मफुल इज नोन एज डिस्ट्रेस, ऑप्टिमल से बहुत अधिक हो, कैन कॉज हेडेक, बैकएक हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकती है, फटीग है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तो बहुत एक, जितने भी रिसर्च स्टडीज आप देखेंगे डाइजेस्टिव ट्रबल्स का मुख्य कारण स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। इफ यू आर अनेबल टू फोकस, वी फेस डिफिकल्टी इन फोकसिंग एंड इम्पेयर्ड मेमोरी। तो ये एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ यूस्ट्रेस। थोड़ा सा यूस्ट्रेस को समझने का, देयर आर थ्री यूस्ट्रेस हैज effects on all three dimensions, that is mental, emotional, physical, all are in front of you. If we talk about mental, from the dimension of mental, that enhance our creativity, हमारी सृजनशीलता को बढ़ाता है, thinking ability, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, that leads to greater orientation and enhanced motivation। और यदि इमोशनल संवेगात्मक बात करें, सेंस ऑफ कंट्रोल उत्पन्न होती है, responsiveness to environment, and we improve interpersonal relationships, और हमारे मॉरल भी इंप्रूव होते हैं। यदि तीसरे आयाम की बात करें, तीसरे आयाम पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? फिजिकल के हाई एनर्जी लेवल, यूस्ट्रेस के, ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस के, दैट इंक्रीज्ड एंड्योरेंस, वी कैन डिले द फटीग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, हम थकान को देर तक दूर रख सकते हैं, एंड फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज। एग्जाम्पल तो बहुत थे, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रबल्स हों या दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रबल्स हों, ऑल आर एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रेस। अब नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ स्ट्रेस, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होंगे? तीनों क्षेत्रों की बात करते हैं, तीनों डायमेंशंस की बात करते हैं, तीनों आयामों की बात करते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द मेंटल। पुअर मेमोरी, हमारी मेमोरी बहुत एक कमजोर होगी, वी विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट, क्रिएटिविटी भी लो होगी, सेल्फ कंट्रोल भी पुअर होगा, सेल्फ स्टीम भी लो होगी। फिजिकल सिम्टम्स की बात करें, फ्लश्ड फेस, ड्राई माउथ रहेगा, कोल्ड हैंड्स रहेंगे, गैस्ट्रिक ट्रबल्स और रैपिड ब्रीदिंग होगी। इमोशनल की बात करें, इरिटेबिलिटी, वी विल बिकम इरिटेबल ऑन स्मॉल कॉजेस, डिसऑर्गेनाइजेशन रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगी, और मूड स्विंग, एक कभी बहुत खुश हैं तो कभी बहुत दुखी हैं, इस प्रकार हम अपने आप को महसूस करेंगे। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखिए, बात मैं पहले बात कर रहा हूँ, चाहे किसी योग अभ्यास की बात करें, चाहे स्ट्रेस की बात करें, दीज हैव बोथ द टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, स्पॉन्टेनियस इफेक्ट ऑल्सो एंड डिलेड इफेक्ट्स ऑल्सो, मीन्स दीर्घकालिक प्रभाव भी होते हैं। तो लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक प्रभाव कौन कौन से हैं? बाउट्स ऑफ डिप्रेशन का सामना हम करेंगे, हमारी नेचर सस्पिशियस हो जाएगी, शंकालु प्रवृत्ति के बन जाएंगे, टॉलरेंस, हमारी सहनशीलता बहुत कम होगी, भूलने की बीमारी होगी, वी विल नॉट बी एबल टू टेक गुड डिसीजंस। फिजियोलॉजिकल बात करें तो
हाइपरटेंशन है, कोरोनरी डिजीज हो सकती है, अल्सर्स तो एक बहुत मेजर इसका अल्सर्स का मेन कॉज है स्ट्रेस, माइग्रेन हो सकता है, एलर्जीज हो सकती है, ओवरवेट और अंडरवेट दोनों ही प्रभाव पड़ सकते हैं। और व्यक्ति आजकल की जनरेशन है वो एक ड्रग अब्यूज की तरफ बढ़ सकते हैं और स्मोकिंग या ड्रिंकिंग शुरू कर सकते हैं। दिस डायग्राम शोज द relationship between performance and the stress. Here the pressure means the stress, the level of stress. On x-axis pressure is shown, means level of stress is shown. On y-axis our performance is shown. If we have a very low level of stress, our performance will be low. If we have moderate level of stress, the performance will be of moderate level. If our stress or the pressure will be of optimal level, the performance level will very high. And if we have more than this optimal level, that will lead to decrease in the performance. और एक उससे बहुत अत्यधिक हो गया, that will lead to burnout. वो तो एक घातक परिणाम उसके हो सकते हैं. We may assume about what is the physiology of stress. थोड़ा स्ट्रेस की फिजियोलॉजी की बात करते हैं कि व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस रेस्पॉन्स सिस्टम कैसे घटित होता है. संक्षिप्त में स्पीड के साथ, गति के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं. स्ट्रेसर आया, तनाव देने वाला आया, कोई जीवन में आपसे ऐसा टकरा गया कि जो ऐसा आपको एक ऐसी घटना उत्पन्न कर गया जिसने स्ट्रेसर का काम किया और वो आपके साथ घटित हुआ, तो उस घटना ने आपके हाइपोथैलेमस को अलर्ट किया. ड्यू टू दैट स्ट्रेसर और हाइपोथैलेमस अलर्टेड. उसने क्या किया, उसने अलर्ट किया, चेतावनी दी पिट्यूटरी ग्लैंड को कि बी अलर्ट. हाइपोथैलेमस अलर्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, उसने ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर दिया. और ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट हुआ, that arrives in the adrenal cortex. Adrenal cortex पर वो पहुंचा और वहां पर क्या हुआ, एड्रेनल कॉर्टेक्स ने रेस्पॉन्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड सीक्रेट करना शुरू कर दिया, और जिससे कहा कि फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स हुआ. जो परिवर्तन आया, परिवर्तन आप सबके सामने है. दैट लीड्स टू रेज इन द बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट बढ़ी, BP बढ़ा, डाइजेस्टिव एक्टिविटी बढ़ी, जो कि दैट विल लीड टू डाइजेस्टिव ट्रबल्स, maybe sluggish digestion. Liver converts glycogen to glucose and dilation of the bronchioles. तो ये है कहानी पूरी कि how stressor leads to these changes, how stressor leads to physiological response. अब बात करते हैं the General Adaptation Syndrome, GAS. ये I have said earlier also कि CLA was the first who डिफाइंड स्ट्रेस फर्स्ट टाइम. तो देखिए, टाइम एंड रेसिस्टेंस एक स्टेट है. होम्योस्टेसिस इज ए बैलेंस स्टेट. स्ट्रेस आया, अलार्म स्टेज में आया, रेसिस्टेंस स्टेज. अगर हम रेसिस्ट कर पाए उसको स्ट्रेसर को, तो ठीक है, और नहीं तो दैट विल लीड टू नेक्स्ट स्टेज, एक्सॉशन स्टेज में हम प्रवेश करेंगे, और दैट विल लीड टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी. तो ये जो कि पांचों स्टेज हैं इसके in relation to time, these are shown to you. Homeostasis, all systems active to everyone, stresses in a balanced manner, in a healthful manner, in a healthy manner. अलार्म आया तो homeostasis जो हमारा बैलेंस स्टेट है वो थोड़ी सी ड्रॉप हुई, that will drop, and as the mind and body temporarily loses balance, temporary phase है अलार्म का, और resistance starts and adaptation resources combat stressor combat किया. जो इन्वेडर्स हैं, आक्रमणकारी हैं, उनसे फाइट किया. if we are unable to fight, if we are unable to maintain the balance, if we are unable to maintain the homeostasis, that will lead to exhaustion, adaptation energy stores weakened, और एक जिससे कि अगर बहुत लंबे अंतराल तक रहा, that will lead to psychosomatic disorders. If stressor cause wear and tear on the body over a long period of time without balanced management, that will lead to psychosomatic disorders. Common questions regarding stress. यदि common questions की बात करें stress की, it is not possible to discuss about all imaginary questions in the limited duration of time. कुछ हैं
क्वेश्चंस, हाउ कैन आई एलिमिनेट स्ट्रेस फ्रॉम आवर लाइफ, मैं अपने आप को तनाव मुक्त कैसे करूं, कर ही नहीं सकता कोई. इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट स्ट्रेस. बस सीखना है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, हाउ कैन आई टेल व्हाट इज ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस, कि हमने कहा कि यू स्ट्रेस है, ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या है? नो, ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस, हर व्यक्ति विशेष का ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस समान नहीं हो सकता. कोई वल्नरेबल है, संवेदनशील है, ऑप्टिमल स्ट्रेस बहुत कम है. जो कि बहुत ही वल्नरेबल नहीं है, संवेदनशील नहीं है, उनका ऑप्टिमल स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई होगा. इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, काल्पनिक क्वेश्चंस थे. तो एक टाइम मैनेजमेंट भी स्ट्रेस में बहुत एक तनाव उत्पन्न करने में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऑर्गेनाइज एंड राइट डाउन रियलिस्टिक गोल्स, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो ऐसे ही लक्ष्यों का निर्धारण करें. डेवलप टाइम फ्रेमवर्क, एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज फॉर टाइम. हम सबके जीवन में एक ही काम एक बार में नहीं होता. वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, वी हैव टू एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज फॉर टाइम. जिसमें चौथे बिंदु में हम संकोच करते हैं, आस्क फॉर हेल्प इफ द रिस्पांसिबिलिटीज बिकम ओवरवेलमिंग. यदि अगर हमें रिस्पांसिबिलिटीज बहुत हैं तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए, सहायता लेने में. टेक ए ब्रेक, कंटिन्यूटी नहीं रहे, निरंतरता को ब्रेक जरूर कीजिए, निरंतरता में अवरोध जरूर पैदा कीजिए. नो वेयर एंड व्हेन यू कैन बेस्ट कंप्लीट ए टास्क. एवरी टास्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड एट एवरी टाइम एवरी प्लेस. नो वेयर एंड व्हेन, कब और कैसे, कब और कहाँ इस टास्क को किया जा सकता है. वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस. माय सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, स्ट्रेस एंड मेडिटेशन. संक्षिप्त में बात करेंगे. मेडिटेशन एक सबसे सरलतम माध्यम है, सहज योग मेडिटेशन भी सरलतम माध्यम है. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेडिटेशन. यदि हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करते हैं मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन की परिभाषाओं की तो बात करने की अब आवश्यकता नहीं है. वी आर हैविंग वी रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, और हमारे पास शॉर्टेज है टाइम की. परिभाषा एक सामने, इट इज अ स्टेट दैट इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन द माइंड डिसॉल्व्स इन फ्री ऑफ थॉट्स. अपने आप को विचार विहीन करने लेने की अवस्था मेडिटेशन बताई गई है. एक दूसरे में एकाग्रता बताई गई है कि हम अपने आप को बेचैनी से दूर कर लें. और ये तीसरी परिभाषा, ये सबसे प्रचलित परिभाषा, फोकसिंग द माइंड ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट. वो रिलीजियस स्टैचू भी हो सकता है, ब्रेथ हो सकती है, मंत्र हो सकता है. योग में एग्जांपल है प्राण धारणा, कंसंट्रेटिंग द माइंड ऑन द ब्रेथ. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस डेफिनेशन. और मेंटल ओपनिंग टू द डिवाइन, इनवॉकिंग द गाइडेंस ऑफ हायर पावर. उस हायर पावर, उस सुप्रीम पावर के प्रति अपने मस्तिष्क के सारे दरवाजे खोल देना और आग्रह करना कि हमें ज्ञान चाहिए. अगला, रीजन एनालिसिस ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स. कुछ प्रगाढ़ विद्वान मानते हैं कि धार्मिक शिक्षाओं का तर्कपूर्ण विश्लेषण करना शुरू करते हैं, वो मेडिटेशन है. और सबसे सिंपलेस्ट परिभाषा, अंतिम छठी परिभाषा है, पेनिट्रेटिंग टू द डीपर लेवल ऑफ माइंड. अपने माइंड को गहराई से भेदने की प्रक्रिया ही, अपने माइंड को गहराई से भेदने की प्रक्रिया ही मेडिटेशन है. टाइप्स ऑफ मेडिटेशन की बात करें, मॉडर्न कंसेप्ट है कि 2 प्रकार के मेडिटेशन है, कंसंट्रेटिव मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस मेडिटेशन. टू अंडरस्टैंड इन एन इफेक्टिव वे, प्रभावशाली तरीके से यदि समझना चाहते हैं कि वी कैन कंपेयर ए कंसंट्रेटिव मेडिटेशन विद ए जूम लेंस. फर्स्ट वी सेलेक्ट द फील्ड एंड वी नैरो आवर फोकस ऑन द सेलेक्ट. Focusing the mind on a single object is an example of concentrative meditation, and we can compare this with a zoom lens. First we select a field and we try to narrow the focus on that particular field. Another is mindfulness meditation. Instead of focusing the mind on a single object, we become aware of the entire field. Passing period देखते रहते हैं. We may compare with the wide angle lens. हर जगह ध्यान है लेकिन एक जगह मन को उलझने नहीं देते. That is the example of mindfulness meditation. वैदिक साइंस, अंतिम भाग है मेडिटेशन का. वैदिक साइंस में मेडिटेशन को किस प्रकार से कहा गया है, संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं. एक आर्टिकल से लिया गया है. द ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 3 एस्पेक्ट्स. ह्यूमन बीइंग के 3 एस्पेक्ट्स हैं और 3 फंक्शंस हैं उसके. एस्पेक्ट्स हैं फिजिकल बॉडी, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं बॉडी लेयर्स में. एक है इनर फैकल्टी है, दैट इज नोन एज वर्किंग कॉन्शियसनेस. और तीसरा डीप इनर सेल्फ. हर व्यक्ति चाहता है कि डी इसको अचीव करे, डीप इनर सेल्फ को, दैट इज नोन एज प्योर कॉन्शियसनेस.
इनर फैकल्टी की बात करते हैं. आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट, फिजिकल बॉडी की बात नहीं करते. हमने बात की थी जन्म हुआ, वृद्धि हुई, स्टैग्नेशन आया, डिटोरेशन आया, डेथ हुई, उसकी बात नहीं करेंगे. सीधा इनर फैकल्टी की बात करते हैं, वर्किंग कॉन्शियसनेस की. दैट हैज 4 सब पार्ट्स, इसके 4 उपभाग हैं. माइंड है, क्या करता है माइंड? दैट प्रोसेसेस सेंसरी परसेप्शंस, हैज द क्वालिटी ऑफ ड्यूअलिटी, सीन इन पेयर्स. हर जगह पॉजिटिव में मिलेगा. प्लेजर होगा तो पेन भी होगा, गुड होगा तो बैड भी होगा, हॉट होगा तो कोल्ड भी होगा. हर जगह ड्यूअलिटी है. और दूसरा इंटेलेक्ट, वो क्या करता है? एनालाइज, विश्लेषण करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एंड डिसाइड्स, निर्णय लेता है, एंड जजेस. और तीसरा सेकंड लास्ट पार्ट है ईगो, डूअर एंड एक्सपीरियंसर, करने वाला और अनुभव करने वाला. और अंतिम है चित्त. चित्त की entirety of human mind, that is a storehouse like a hard disk of a computer, that is a storehouse of all memories and impressions of life. All impressions are stored in this, in चित्त. तो इनर फैकल्टी की बात कर ली. अब बात करते हैं तीसरे भाग की, डीप इनर सेल्फ, that is known as pure consciousness, the non-changing pure consciousness which has a quality of unity and witnesses the activity of inner faculty. जो inner faculty की थी, जो duality भी थी, उसको witness करती है, देखती है. The deep inner self is a source of all knowledge, intelligence, creativity, and all natural laws that govern the existence. वैदिक साइंस में कहा गया साफ, the deep inner self, that is the third one, that is the last, that is known as pure consciousness, that activates the inner faculty, जिसको हमने कहा था working consciousness, which in turn activates the physical body. First one, physical body को activate करता है. And a feedback loop is provided by meditation. If any individual practice meditation regularly, निरंतर रोज ध्यान का कोई अभ्यास करता है, एक feedback loop provide किया जाता है meditation के द्वारा, in which a conscious connection is made with the deep inner self. और एक connection स्थापित किया जाता है deep inner self के साथ. Deep inner self means a pure consciousness के साथ. We may connect ourselves with the deep pure consciousness. It means deep inner self. And this view, इसको ठीक से समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लिया गया है कि this view of human being correlates with the scientific view of DNA. थोड़ा उसको समझते हैं और फिर उसको कोरिलेट करके समझने का प्रयास करते हैं कि ऑन ए सेलुलर लेवल पर, एक कोशिका स्तर पर क्या होता है कि DNA क्रिएट्स एंड कंट्रोल और एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, हम सब जानते हैं. और इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA प्रोसीड टू RNA, जो सूचना है DNA से RNA पे पहुंची, देन टू अमीनो एसिड्स through which proteins are formed, protein form हुए. तो a feedback loop to DNO starts a new cycle to provide whatever is needed to the activities of the cell. कि कोशिकाओं के लिए कौन सी गतिविधि होनी है, फीडबैक लूप द्वारा स्थापित हुआ. Similar type of action that takes place in meditative practices also. In meditation, इसको correlate करते हैं. Meditation में the feedback loop to the deep inner self. Deep inner self क्या था? Your consciousness, the seat of knowledge, like DNA. जैसे DNA ने एक फीडबैक लूप प्रोवाइड किया, उसी तरह से ये डीप इनर सेल्फ ने, एक मेडिटेशन ने डीप इनर सेल्फ को एक फीडबैक लूप प्रोवाइड किया. वो क्या करेगा? That leads to provides inner peace and bliss, which removes accumulated stresses in life and improves overall health. That leads to the improvement of all dimensions of health: physical, mental, social, spiritual, and emotional. And we have also discussed that body and mind cannot be separated. And this meditation is a mind practice. And human beings routinely experience 3 states of the consciousness. Waking, हम जागरूक हैं. We all are out of these 3 states. We are in waking state. हम जागरूक अवस्था में, ड्रीमिंग स्टेट में, सपने भी देखते हैं, डीप स्लीप में भी प्रवेश करते हैं. और वो बहुत ही भाग्यशाली है जो तीसरे की अनुभूति करते हैं, डीप स्लीप की. हम हमेशा सोते हैं, हमेशा डीप स्लीप में प्रवेश नहीं करते हैं. ध्यान दीजिए इस बात को. एंड वेकिंग स्टेट, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन. दूसरा है ड्रीमिंग स्टेट. इन ए ड्रीमिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज अवेयर ऑफ द इनर ड्रीम वर्ल्ड बट नॉट अवेयर ऑफ द स्लीप. क्या है? इन डीप स्लीप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस is not functioning at all. Inner faculty दूर तक कुछ कार्य नहीं करती है and is not aware of anything. In this state,
ड्यूलिटीज, जो ड्यूलिटीज थी अच्छा बुरा, प्लेजर पेन, गुड बैड, उसकी अनुभूति दूर दूर तक नहीं होती. दीज आर नॉट एक्सपीरियंस्ड. देयर इज नो एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस. तनाव मुक्त, एंजाइटी नहीं, गिल्ट नहीं, ग्रीड नहीं, एनवे नहीं, जेलसी नहीं, एंगर नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं. The only experience is the state of unity, is a peace and bliss. बस शांत मन की अनुभूति होती है, इसके अलावा कुछ नहीं. This is why deep sleep or a good night sleep feels so good. और बिना मेडिटेशन के भी इस गुड नाइट स्लीप में हम कई बार एंटर करते हैं, आपने भी अनुभूति की होगी. तो मेडिटेशन का सेंस क्या है? तो मेडिटेशन क्या करता है? In meditation, by the help of meditation, different types of effects takes place. This meditation process takes the mind from outer realm to the objective world to the inner realm of the inner faculty, which includes the mind, intellect, ego, chitta, the storehouse of the memories and impressions of life, and finally goes behind the outer and inner realm and reach to the deep inner self. तो कुल मिलाकर ये है, the last sentence is very important. Going beyond the changing inner faculty to the non-changing pure consciousness provides inner peace and bliss, which removes the accumulated stresses of life. This results in energizing the body and improving overall health. डीप स्लीप में जब हम कभी कभी एंटर करते हैं तो हम अनुभूति करते हैं, लेकिन मेडिटेशन में तो जागरूक अवस्था में we enter in deep sleep. In deep sleep, the unity of deep inner self is experienced, and in this process of meditation, one experiences the unity of deep inner self while being aware and not sleeping. This is the most important part of this slide. Not in sleeping state, but in waking state, we feel the same. That is the essence of meditation that leads to decrease stress. And this experience of peace and bliss of unity modifies the inner faculty, और वो हमारी working consciousness को भी improve करती है. And the property of deep inner self, that is the pure consciousness, become to extend into the inner faculty. Since the deep inner self in the source of all knowledge, we have discussed earlier also, that leads to extend all aspects of life, physical, mental, emotional, spiritual, social aspects. So these are the few research related benefits of meditation. Reduces stress. Everything is revealed by research studies. Decreased anxiety, decreased depression, reduction of pain, improve memory, decreased efficiency, and physiological meditation leads to physiological effect also. Reduce blood pressure, it is also revealed by research studies. Reduce heart rate also. Reduce lactate, production of lactic acid also. Decrease metabolism also. And I would like to share the results of a survey conducted by a research study. Meditators has resulted in significant reduction in the payment of the physicians by a government health insurance agency. Government health insurance agency के द्वारा एक सर्वे स्टडी की गई, सर्वेक्षण अध्ययन किया गया, और 5 साल तक जिन लोगों ने मेडिटेशन किया तो और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने दवाइयों के लिए, बीमारियों के लिए 28% अधिक पैसे पे किए. ये एक स्टडी है, एक सर्वेक्षण, एक अध्ययन है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन. वैसे मैं निर्धारित समय, मैडम रीना पूनिया ने जो समय निर्धारित किया था उससे अधिक मैं ले चुका हूँ. थोड़े छोटे अभ्यास हैं. आई विल शेयर दिस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन टू यू ऑल ऑल्सो. तो कपोल शक्ति विकासक भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल सा अभ्यास है कपोल शक्ति विकासक में. कि कपोल शक्ति, कपोल मीन्स आवर चीक्स. बेशक का कपोल शक्ति विकासक नाम है, लेकिन उसका एक ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, इस विश्वव्यापी महामारी में कपोल शक्ति विकासक का बहुत अभ्यास किया गया टू स्ट्रेंथन आवर लंग्स आल्सो, दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस आल्सो. नोस्ट्रिल को दोनों थंब से कंट्रोल करना है, गालों को खुलाना है. वी हैव टू परफॉर्म जालंधर बंद लगाना है. वी हैव टू मेंटेन दिस पोजीशन. भ्रू मध्य दृष्टि है, संस्कृत का भ्रू मीन्स आईब्रोज, भ्रू मध्य इन बिटवीन आईब्रोज. वी हैव टू कीप, इसको छोड़ते हैं, सॉरी भ्रू मध्य है, भ्रू मध्य दृष्टि. See, this is a भ्रूमध्य दृष्टि, इसको छोड़ते हैं अभी नसाग्र दृष्टि को. भ्रूमध्य दृष्टि means keeping the eyeballs in between the eyebrows.
भ्रूमध्य, और अगला है नसाग्रा दृष्टि, कीपिंग द आईबॉल्स इन on the nose tip. Nasagra is also a Sanskrit word that means nose tip. अगला है अनुलोम विलोम प्राणायाम. We inhale through left nostril, exhale through right nostril. Again inhale through right nostril and exhale through left nostril. We all have the sequence of this. Progressive relaxation technique is the best way to decrease stress. We contract the muscles, concentrate on that. We relax the muscles. We try to differentiate between the contraction and relaxation. Prana dharana, simplest type of meditation. Prana dharana, simplest type of meditation. Prana dharana is the simplest type of meditation, means concentrating the mind on our breath. Meditation भी है, म्यूजिक भी है, टाइम मैनेजमेंट जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, my sincere thanks to you all. I express my sincere thanks to the Dean Faculty of Arts को करता हूँ, और मैडम रीना पूनिया को, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, और डॉक्टर देवी प्रसाद शर्मा जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने आप सबने मुझे आमंत्रित किया. आई ऑल्सो माई सिंसियर थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम, दैट इज डॉक्टर बिंदिया, डॉक्टर दीपक एंड श्री मोहित शर्मा जी. योर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड नाउ. आपके प्रश्न आमंत्रित है. इफ एनी पार्टिसिपेंट वांट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ही और शी मे आस्क. थैंक यू. Thank you so much, sir, for such an elaborative and informative session. Hope now participants able to understand the concept of stress and how yoga and meditation will be a boom to manage stress. Now the session is open for interaction. If anyone have any kind of question, they can ask. We can take up 2 or 3 questions. Are you able to unmute yourself? You can ask question. Kindly confirm if you're able to access your mic. Hello, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, you are Yes, audible. sir. Yes, Harshvardhan, sir, you are audible. Though no, the talk was on stress management through yoga and meditation. I was just wondering, other than yoga and meditation, is there any other method that reduces the stress, that manages stress? Sir, I have explained about other methods also. One example is a progressive relaxation techniques also. These are not part of yoga practices. By using progressive relaxation techniques, we contract our muscles and we concentrate on that. In the second phase, we relax our muscles and we concentrate on that relaxation. And then in the third part, we try to differentiate by our mind the difference between contraction and relaxation. And we may proceed from head to toe, toe to head. These types of, I have given one example other than yoga, that is progressive relaxation technique. There is a long list. There are various means and methods. By using that, by practicing that, we can control stress. Okay. Yeah, thank you, sir. Thank you. The talk was really interesting and very informative, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Any other question? We can go for 2 more questions. Sir, I am audible, sir. Yes, sir, you are audible. Yes. Sir, please explain progressive relaxation techniques. I have explained earlier also, progressive relaxation technique. This practice is related to contraction and relaxation of muscles.
In the first part, we contract the muscles and we try to concentrate on that contraction. Suppose we are contracting our bicep muscle and try to concentrate on that. Then we relax, then concentrate on that, then try to differentiate between the contraction and relaxation phase. And we have to repeat the same by contracting all muscles one by one. We may start from head to toe, or we may start from toe to head. Okay, thank you so much, sir. Any other question? We can go for last one question or. So I think all the queries has been resolved. So we come to an end. Before ending we'll go proceed to vote of thanks. We have certain announcement for the participants. Kindly do check your mails on frequent basis. We're going to share certain things related to your participation, the attendance criteria and the certificate criteria. So kindly do read the mails very carefully. Another thing is we'll share a feedback link after every session to kindly fill that feedback form. And now we just come to the closure of the first session of day 1. So I request Dr. Deepak Bangari to propose formal vote of thanks to the participants and the keynote speaker. So please. Thank you, Dr. Bindia. So greetings to everyone present today, including our renowned keynote speaker, Dr. Rajiv Chaudhary sir, esteemed Dean, Dr. Komal Aditya ma'am, Director, MUG Tech, Dr. Devi Prasad Sharma, and Director and Head, Dr. Reena Punia ma'am, and all participants. It is an honor to have the opportunity to express my appreciation to all the dignitaries present. I am grateful to the extreme delegates of the FDP for their presence and effort in making this session a success. I extend my sincere thanks to our honored keynote speaker, Dr. Rajiv Chaudhary sir, for taking time for his busy schedule to be with us. Your words of knowledge, inspiration, motivation, and encouragement on this special session are greatly appreciated, sir. My gratitude goes to Dr. Komal Aditya ma'am, Dean, Faculty of Arts, for her support in organizing this session. A special thanks goes to Dr. Devi Prasad Sharma, Director of MUG Tech, for his unwavering support in making FDP a success. My gratitude also goes to Dr. Reena Punia ma'am, Director of Sports and Head of the Department of Physical Education, Sports and Yoga, for her efforts in organizing this session successful. I must also acknowledge the organizing team and volunteers for their hard work in the lead up of this FDP. I extend my congratulations to all the participants for their active involvement. Thank you once again for everyone for making this session a great success. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. And thank you all the participants. Now we are going to at 2:20 you need to join the next session. Yes, sir, you want to say something? Thanks to you all. Thank you very much. May I